Hi everyone, welcome back to our Sports Study YouTube channel. Myself Chandan Rana. I am very beginner in this platform. Please keep supporting me. Today I will explain about the intramural and extramural competition and meanings, objective, significance of these competitions. It's a most important topic from planning in sports. This is the fifth video of planning in sports. Those are not seen first, second, third and fourth part of this video, go to the playlist and check it out. Like and share this video, do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for next update. Now in this slide we will try to understand about the intramural competitions. Now the first is intramurals is derived from Latin word. The intramurals word is divided in two parts. The first part is known as intra and the second part of this word is murals. Here we have the meanings of intra. Intra, it means within or inside. And the next is murals. Murals means wall. Now the meanings of intramurals or the definitions of intramurals competitions. The activities which are performed within the wall or within the campus of an institution are called intramurals. मतलब जो एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटिशन्स आपके स्कूल कैंपस के अंदर ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है उसको इंटरमुरल कॉम्पिटिशन्स बोला जाता है. एज ए एग्जांपल ऑफ इंटरमुरल कॉम्पिटिशन्स इज इंटर हाउस इंटर क्लास कॉम्पिटिशन्स. मैक्सिमम स्कूल हैव यूनिफॉर्म्स हाउस like blue house, green house, red house, yellow house. So competitions between among this house. The inter-class competitions, it means the games and activities between the two different class like 9 versus 10, 11 versus 12. So this kind of activities are held or organized in the school campus. So this kind of tournament or this kind of matches or this kind of competitions is called intramural competitions. Now the next is no students of other school can participate in these activities. Our own school students have performed or participate in these competitions. No other school students have taking part in these competitions. Own school students ही इस competition में participate करेंगे. दूसरे school के students इस competition में participate नहीं कर पाएंगे. Next is the origins of intramural competitions. When and where this kind of competitions was invented. Now we will know about this. USA was started intramural competitions in the year of 1864. पहला गेम जो है वो बेसबॉल खेला गया था. इंटरमुरल में पहला गेम बेसबॉल खेला गया था. Now the next is 1925. Every high school started the mission to establish intramural department in the USA. इसके बाद 1925 में हर एक स्कूल में यूएसए की हर एक हाई स्कूल में इंट्रामुरल डिपार्टमेंट्स एस्टेब्लिश किया गया है. इसके पीछे रीजन क्या था? टू डेवलपमेंट द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड. नाउ इन दिस स्लाइड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इंडिया विल थिंक अबाउट द इंट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स. इंडियन पीपल्स आर लैगिंग बिहाइंड इन दिस फील्ड बिकॉज lack of infrastructures in the schools. Now the next is school do not pay any attention in organizing intramurals for each and every students. The next is parents wants their child to devote the maximum time on study. So जो parents वो अपना बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्टडी में बिजी रखना चाहते हैं, स्पोर्ट्स के लिए उतना अलाउ नहीं करते. जैसे एक मिसकॉन्सेप्शंस है रिगार्डिंग स्पोर्ट्स. पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब. सो इस टाइप की मेंटेलिटी की वजह से इंडिया आज भी स्पोर्ट्स में दूसरे देशों से बहुत पीछे है. नाउ द नेक्स्ट इज फैसिलिटीज अवेलेबिलिटी. बहुत सारे प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होने की वजह से बच्चे अपना हेल्थ और स्पोर्ट्स स्किल की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं कर पाते. जैसे कि ग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी, स्पोर्ट्स टीचर और कोचेस की अवेलेबिलिटी. ये सारे फैसिलिटीज़ नहीं होने के वजह से हम प्रॉपर टैलेंट आइडेंटिफिकेशंस नहीं कर पाते, इसलिए हम स्पोर्ट्स में बहुत पीछे हैं. नाउ द नेक्स्ट इज़ फंड अवेलेबिलिटी. बहुत सारे स्कूलों में लिमिटेड फंड रहने की वजह से स्पोर्ट्स के ऊपर सही तरीके से एक्सपेंस नहीं कर पाते, जिसके वजह से बच्चे को प्लेग्राउंड और प्रॉपर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स नहीं मिल पाता और इसीलिए बच्चे स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा पाते. अगर कोई भी स्कूल प्रॉपर तरीके से फंड की यूटिलाइज करे और बच्चे को प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराए तो स्कूल के बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं.
नाउ द नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ स्टूडेंट्स इन हाउस। जैसे कि एक स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो उसी स्टूडेंट को हर एक अलग अलग हाउस में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे रेड हाउस, येलो हाउस, ब्लू हाउस एंड ग्रीन हाउस है। सो ऐसे हाउस में हम उसको यूटिलाइज कर देंगे एंड आफ्टर दैट वी अरेंज द कॉम्पिटिशन्स अमॉन्ग द हाउस। और बच्चे को अलग अलग गेम खेलने के लिए मौका भी मिलेगा, जिसकी वजह से बच्चे के इंटरेस्ट और स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटीज़ इम्प्रूव होते रहेंगे। मैच पार्टिसिपेशन होने की वजह से यहाँ पे प्रॉपर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन की चांसेस भी रहता है। नाउ इन दिस स्लाइड वी हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरमुरल कॉम्पिटिशन्स। The first objective of this intramural competition is to provide opportunity to every student to participate in games and sports. So as we all know that intramural competitions is provide ample opportunity to every student. So that, जैसे कि हम सब जानते हैं इंटरमुरल कंपटीशन में अपने खुद का ही स्कूल के स्टूडेंट्स कंपटीशन में भाग लेते हैं। तो इसी वजह से हर एक स्टूडेंट्स को अल्टरनेटिव चांस मिलता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरमुरल कॉम्पिटिशन इज टू प्रोवाइड द लीडरशिप क्वालिटीज अमंग द स्टूडेंट्स। इंटरमुरल कॉम्पिटिशन्स की वजह से स्टूडेंट की हिडन क्वालिटीज और एबिलिटीज जो है वो सामने आता है, जैसे कि वो एक टीम या ग्रुप को सही तरह से लीड कर पाए। नाउ द नेक्स्ट इज टू डेवलप द फीलिंग्स ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरमुरल कॉम्पिटिशन्स। जब एक स्टूडेंट या स्पोर्ट्स पर्सन कॉम्पिटिशन में परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो उसी ग्राउंड में उसका टीम मेंबर, ऑफिशियल या ओपोनेंट टीम मेंबर भी मौजूद रहता है, तो उसके लिए प्रॉपर रिस्पेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। और यही सारे चीज़ें हम इंटरमुरल से सीख पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरमुरल कॉम्पिटिशन इज प्रोवाइड रिक्रिएशंस। इंटरमुरल कॉम्पिटिशन इज प्रोवाइड रिक्रिएशंस टू द मैक्सिमम स्टूडेंट्स। एज ए एग्जाम्पल अगर हम फुटबॉल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एंड जोनल लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 सब्स्टिट्यूशन ही अलाउ है, बट इन इंटरमुरल कंपटीशन में हम वहाँ पे मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन अलाउ कर सकते हैं। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इंटरमुरल कंपटीशन इज टू डेवलप द फीलिंग्स ऑफ कोऑपरेशंस। जैसे कि एक स्कूल में इंटरमुरल कॉम्पिटिशन्स के दौरान इंटर हाउस या इंटर क्लास की स्टूडेंट जब पार्टिसिपेट करते हैं तब उसके पास एक मेन थिंग ये रहता है, हम मैच कैसे जीते। तो इसके लिए चाहिए बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग द स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सब जानते हैं अगर हम एक टीम से खेल रहे हैं तो कोई अकेला आदमी, कोई अकेला स्पोर्ट्स पर्सन की टीम को जिता नहीं सकता। तो इसीलिए सबके बीच एक बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर कोऑर्डिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, और वो सारे चीज़ें हम इंटरमुरल कंपटीशन से ही सीख पाते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस ऑफ कॉम्पिटिशन्स। अब एक स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में परफॉर्मेंस करेंगे या पार्टिसिपेट करेंगे तो उसी दौरान उसका एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होते रहता है। नाउ द नेक्स्ट इज लर्न ए वेराइटीज ऑफ गेम्स एंड स्किल। जब एक स्टूडेंट्स इंटरमुरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है तो हम सब जानते हैं इंटरमुरल कंपटीशन एंड ऑफ द वीक ऑर्गेनाइजिंग्स किया जाता है। हर एक वीक में डिफरेंट गेम की कंपटीशन्स होता है। सो इसी वजह से अगर कोई स्टूडेंट्स चाहे तो बहुत सारे गेम भी सीख सकते हैं और उस गेम से रिलेटेड स्किल को भी अचीव कर सकते हैं। और जहाँ पे वेराइटीज़ ऑफ स्पोर्ट्स है और वेराइटीज़ ऑफ स्किल है तो स्टूडेंट्स को एम्पीड अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की वजह से वो अपना गेम सही तरह से चॉइस कर पाते हैं और अपने आप को सही मुकाम तक ले जा सकते हैं। Now the next objective of this intramural competition is to find out the talented sports persons. It is possible because we know that maximum students have performed in this platform. So we know that talent कभी छुपता नहीं है, talent दिख जाता है. So those students are having extraordinary skills, so they should be light in these competitions. So after this, the physical education teachers and coaches select those kind of students for the next level of competitions. Now the next is to develop personality. So all those qualities like physical, mental, social and emotional qualities are the main aspect of personality. If the students have continuously performed some kind of activity, so they can easily improve their personality. Now in this slide we have to explain about the meanings of extramurals. So extramurals is derived from the Latin word, as you all know that. Now the word meanings of extramurals. The extramurals is divided in two words, extra and murals. So extra means outside and murals means wall. So what is extramural competitions? The activities which are performed outside the wall of an institutions of school.
So it means which activities are performed outside the campus, outside the school campus or a wall. So this kind of activities is called extramural competitions. ये सारे कॉम्पिटिशन्स आउट ऑफ द वॉल्स होता है आपका। मतलब अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हो तो आपका अगर कॉम्पिटिशन्स होता है तो कॉम्पिटिशन्स आपकी स्कूल पे नहीं होगा, किसी दूसरे की स्कूल में होगा या किसी दूसरे जगह पे होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा या आपका कोई क्लब लेवल पे होगा या जोनल लेवल पे होगा। सो दिस काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन्स इज कॉल्ड एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स, क्योंकि ये आप अपने स्कूल के बाहर जाके परफॉर्मेंस कर रहे हो। तो इस टाइप का कॉम्पिटिशन्स के एग्जांपल क्या क्या है? सो एग्जांपल ऑफ एक्स्ट्रामुरल कॉम्पिटिशन्स: इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स, इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स, क्लस्टर, जोनल, national and international competitions are under extramural competition. Next is the students of other schools also participate in the event. So it means किसी दूसरे स्कूल का स्टूडेंट्स एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। Now the next is advanced levels of intramurals. Obviously extramural competitions is the next level of intramural competitions, because in the intramural competitions we have given ample opportunities to the students, but the extramural competitions we have to provide some selected students for the competition. Now in this slide we have to explain about the significance of extramural competitions. The first significance of this extramural competitions is to provide opportunity to school to show their sports capabilities. So obviously अगर किसी स्कूल की बास्केटबॉल की टीम बहुत अच्छा है या किसी स्कूल की ट्रैक एंड फील्ड इवेंट की कंपटीटर अच्छा है, फुटबॉल की टीम बहुत अच्छा है, ओके, सो ये सारे स्कूल को एक अच्छा मौका मिलता है अपना कैपेबिलिटीज़ या अपना टैलेंट को दूसरे स्कूल के पास या इस कंपटीशन में या ऑर्गेनाइजिंग में प्रूव करने के लिए। तो उस स्कूल की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस दर्शाता है उस स्कूल स्पोर्ट्स में कितना अच्छा है। नाउ द नेक्स्ट इज फॉर एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। सो ऑब्वियसली we know that some selected students, some extraordinary students have take part in this competition. So that's why standard of sports are enhanced by the extramural competitions. Now the next is provided appropriate knowledge of sports technique. तो obviously जब एक स्पोर्ट्स पर्सन अपर लेवल की कंपटीशन में भाग लेते हैं तो उस कंपटीशन से रिलेटेड या उस गेम से रिलेटेड जितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, टैक्टिक्स एंड टेक्निक है उसको सही तरह से एब्जॉर्ब करते हैं और इससे उस स्पोर्ट्स पर्सन्स की नॉलेज या उस स्पोर्ट्स पर्सन्स की कैपेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होता है। नाउ द लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉम्पिटिशन्स इज इम्प्रूव द अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। सो बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में उतना इंटरेस्ट शो नहीं करते। जब एक स्कूल जो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, जब देख रहे हैं उस स्कूल बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स में भाग ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को अप्रिसिएट कर रहे हैं, ओके, स्टूडेंट्स को मोटिवेटेड कर रहे हैं, तो दूसरे स्कूल जो है उस स्कूल को देख के सीख सकते हैं। जो स्कूल स्पोर्ट्स में बहुत पीछे हैं वो दूसरे स्कूल की परफॉर्मेंस देख के मोटिवेटेड होके अपना स्कूल की डिफरेंट कंपटीशंस की टीम बना सकते हैं, लाइक फुटबॉल टीम, बास्केटबॉल टीम, क्रिकेट टीम बना सकते हैं और उसके बाद डिफरेंट कंपटीशंस लाइक डिस्ट्रिक्ट लेवल, जोनल लेवल की कंपटीशन में भाग लेके अपना स्कूल का नाम रोशन कर सकता है। नाउ इन दिस स्लाइड यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स्ट्रामुरल competitions. The first objective of this extramural competitions is to improve the standard of sports. So obviously, as you all know that in the extramural competition, some selected candidates or some extraordinary students or participants have taken part in this competition. So that's why the level of competitions. So that's why the standard of competitions are enhanced in the extramural competitions. Now the next objective of this extramurals is to provide experience to students. एक स्टूडेंट्स या कंपटीटर जब ज़्यादा से ज़्यादा हायर लेवल की कंपटीशन में परफॉर्मेंस करता है लाइक नेशनल और द जोनल लेवल कंपटीशंस, सो ऑब्वियसली वो स्पोर्ट्स पर्सन्स की एक्सपीरियंस बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट इज टू वार्डन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स। जैसे कि एक अच्छे स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन में भाग लेने के बाद अपना नाम, अपना स्कूल का नाम ऊंचा करते हैं, तो दूसरी जगह में जो स्कूल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है या जो स्कूल की
स्टूडेंट्स उस कंपटीशन में या एक्स्ट्रामुरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो वो स्टूडेंट्स दूसरे स्कूल से मोटिवेटेड होके, दूसरे स्कूल के स्टूडेंट से मोटिवेटेड होके अपना गेम खेल के उस गेम से रिलेटेड टेक्निक और टैक्टिक्स को अच्छे तरह से सीख के अपना नाम, अपना स्कूल का नाम बढ़ा सकता है और अपने आप को भी बहुत आगे ले जा सकता है। Next objective of this extramural competitions is to develop the sportsmanship and fraternity. So due to extramural competitions, a sports persons and a students can improve or to develop the sportsmanship and the fraternity. And the next objective of this extramural competitions is to provide the knowledge of new rules and advanced techniques. Okay, so जब एक स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन में भाग लेते हैं तो उस कंपटीशन से रिलेटेड जितना सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अच्छी तरह से जान पाते हैं और बहुत सारे टेक्निक और टैक्टिक्स को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करके अपना परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा इनहेंस कर पाते हैं। So in this slide we have to explain about the difference between intramurals and the extramural competitions. We all know that what is intramural competitions and what is extramural competitions. चलिए देखते हैं इस intramurals and extramural competition के बीच difference क्या क्या है। The first is the activities are organized within wall or compound of the campus. But in the extramural competitions, activities are organized outside the campus. Now the next difference is in the intramurals activities are organized only for the member of school, college or institutions. But in the extramural competitions the activities are organized for more than 2 school, college or institutions. The next is intramurals provide ample opportunity for every member of school, institution to participate in the activities. But in the extramural competitions, only selected members participate in the extramurals activities. Intramural competitions may not be played under fixed rules and regulations of these games. So we know that the rules and regulations are changed according to the conditions of sports in the intramural. But in the extramural competition, played under fixed rule and regulations of the games. Now the next difference of these intramurals and extramural competitions is specific skills, techniques, strategy may not be required. But in the extramural competitions require specific skills, techniques and tactics. The main objective of this intramural competitions is recreation or talent hunt. But in the extramural competitions, the main objective is to enhance performance of individuals or teams. The example of intramural competitions is inter-house, inter-class competitions. But the example of extramural competitions is the zonal level competitions, district level competitions, state level competitions and etc. I hope everyone have understood the basic concept of intramurals and extramural competitions. In the next class we have explained about the some different topic of physical educations. तो तब तक के लिए stay happy and stay healthy. Goodbye. See you in the next class. और हाँ, if you think that this video will help you, just like and share this video. Do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for next update.